Good afternoon, all of you. Today we will start a new numerical problem. The first note down the numerical problem. Okay. Problem number 9.5. A. Uh, Problem is visible to all of you. Can you able to write the problem? A 100 mm long note down this particular problem. Okay. So today we will solve this particular problem. Okay. This is the first problem.
A 100 mm long straight line PQ lying in the first angle. Lying in the first angle, it means that both P and Q it lie on the first quadrant. It means that point P is above the HP and in front of VP. Q is also above the HP and in front of VP. So if any point lie in first quadrant, then the point is above the HP and in front of VP. Then both P and Q it lie in first quadrant. So that this is the first sentence it means. It is inclined at 30 degree to the HP. Line, the particular line PQ is inclined 30 degree to HP. So it means the line is making an angle of 30 degree to horizontal plane and 45 degree to vertical plane. So there is a point R which lie between P and Q such that this particular R it divide the line in the ratio of 1:3. Now the position of R with respect to HP is given as 25 millimeter above the HP, and position of R with respect to vertical plane is given as 30 mm in front of VP. So you have to draw the orthographic projection of line PQ. So what are the steps follow for solving this particular problem? So the first step is that if I write the first step, the step number one is that so first this R point is given to you. So it's the you have to draw front view of R and top view of R. So this is your first step. So, so first try to draw the front view of R and top view of R. So this is your so first you first you draw top view of R and front view of R. Now see this point R is how much 30 mm in front of VP. It means that top view it means that top view of R is the top view of R is a small r. It is 30 millimeter below the XY line. So top view is 30 line below XY line. So you can specify the position of a small r. Similarly, now this particular R point is 25 mm above the HP. It means that the front view of R, that is R dash, is 25 millimeter above the XY line. Okay, so you have to draw the first R dash and R. Now we will go for second step. This is my the second step. So what you need to do, so you have the line PQ is given as the length of 100 mm. So if this particular R it lie between P and Q, so what is the distance between R and Q? This R point is divide P and Q in the ratio of 1:3. It means that PR divided by RQ is 3. So it means that if I say distance between P and R is X and distance between P and R is X, then distance between R and Q will be 3 of X. Now X
plus 3 of x is equal to 100 mm. So 4x is equal to 100 mm. This means that x will be 25 mm. So distance of R and distance between R and point P is 25 mm, and distance between R and Q is 75 mm. So this can be, with this ratio you can find the distance between R and P. So now you have a front view of this particular point. R dash will be there. So so how much distance this particular Q point is from the HP? तो इसमें पॉइंट Q जो है HP से कितना डिस्टेंस एवब है, तो उसके लिए हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं. सो यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन विच पासेस थ्रू R डैश. आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि R डैश से पास होगा. उसका लेंथ कितना होना चाहिए? आर क्यू लेंथ के बराबर. आर क्यू लेंथ हमने 75 mm कैलकुलेट किया. तो एक लाइन जो होगा जो आर डैश से पास करेगा, उसका लेंथ होना चाहिए, आर क्यू का लेंथ कितना है? 75 mm. और वो लाइन जो है एक्स वाई से कितना एंगल बनाएगा? एंगल 30 डिग्री बनाएगा. तो सबसे पहले हम लोग को ये प्रोसीड करना है. सो यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन. So you have to draw a line which passes through R dash and having a length equal to R cube and making an angle theta with respect to xy line. Now this angle theta is given to you 30 degree. So this particular theta is given you 30 degree, this particular number. So once you complete this one, so the line have two ends. One is connected to R dash and other is connected to Q1 dash. So if you get Q1 dash, from Q1 dash you have to draw a perpendicular on the XY line. So that perpendicular distance is called as h of that perpendicular distance is called as h of q. So if you draw a perpendicular from Q1 dash to XY line, then means you have find the position of with respect to जो है वो h of q को उसका क्या होता है? Q1 line after you have to XY and passing to Q1 dash. तो इस कॉपी में कंप्लीट
अब बीटी में ठीक है, आगे ठीक है। तो अभी तक जितना कंप्लीट हुआ था वो आप लोग दिखलाइए। ये स्टेप कंप्लीट करिए अपने नोटबुक में। आप लोग में से कोई शेयर करे अगर जिसने कंप्लीट किया, उसके बाद ही हम लोग प्रोसीड करते हैं। रोल नंबर, रोल नंबर 340, रोल नंबर Sir, 342। I'm doing. ओके ठीक है। रोल नंबर 347, रोल नंबर यस सर, 354, कर रहे हैं कर रहे हैं। रोल नंबर 351। ओके यस सर, कर रहा है अभी। ठीक है, कंप्लीट करो। हाँ ठीक है, कंप्लीट करो। अगर कंप्लीट कर दे तो रोल नंबर 339, रोल नंबर 355, रोल नंबर
एनीवन कंप्लीटेड अप टू दिस स्टेप? अभी तक जितना बताया कोई कंप्लीट किया है तो बताओ। कंप्लीट होने के बाद कोई भी तुम में से कोई भी बता सकता है, ठीक है? तो हम लोग बाद में स्टार्ट करते हैं इसके बाद। So this is the our first step, okay? Price जो है वैसे 25 mm above the x below the x y line। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू और आर का। हाँ हाँ, हेलो सर। अटैच और आर को सबसे पहला step। उसके बाद मुझे पता है तुम लोग प्रॉब्लम। आर आवाज कट रहा है आपका। हाँ करना है सिस्टम के। ये तुम्हें क्यों काम आता तुम्हें कंप्लीट है इस प्रॉब्लम को? चलो ठीक है। ठीक है, तो ये स्टेप तो सबको क्लियर होगा। फिर उसके बाद में नॉट अलाउड टू ज्वाइन दिस मीटिंग। ठीक है, आर डैश और आर को सबसे पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो तुम लोग को इस प्रॉब्लम में आर और क्यू पी क्यू है, तो आर क्यू लेंथ कितना होना चाहिए? 75 mm होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को बढ़ के तुम लोग को आर क्यू के बीच में डिस्टेंस जो है वो तुम लोग को फाइंड करने आना चाहिए था। तो हम मान के चलते हैं कि आर क्यू जो है 75 mm तुम लोग फाइंड कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम अगर आर क्यू आता है तो तुम लोग फाइंड कर लेना चाहिए, ठीक है? इनकेस अगर किसी को डिफिकल्टीज होता है आर क्यू लेंथ फाइंड आउट करने के लिए तो वो पूछ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन का लेंथ कितना होना चाहिए? आर क्यू लेंथ के बराबर होना चाहिए।
अब आर क्यू का लेंथ 75 है, तो हम लोग मानेंगे दिस पर्टिकुलर लाइन हैव a length of the 75 mm. So take this particular line and rotate this particular line to angle of a theta. So now angle of theta is given to you 30 degree. So rotate this particular line with an angle of a 30 degree. To rotate this particular line. So you rotate this particular line with angle of a 30 degree. So it's rotated in, for anti-clockwise direction, you have to substitute minus 30 degree. Once you rotated this particular line with an angle of theta, so you keep this particular end point to r of dash. You keep this particular point to r of dash. Now next end point is called as q1 dash. So this last point is known as a q1 dash. So name this particular last point as a q1 dash. q1 dash. You have to name this particular in as a q1 dash. So this is your steps really there. Now what you need to do again, you have to draw a line which passes to q1 dash and perpendicular to xy line. So you have to draw a line which passes to q1 dash and perpendicular to xy line. Now once you draw this particular length is called as a h of q. So ये पर्टिकुलर लेंथ जो है वो HP से पॉइंट Q जो है वो HP से कितना डिस्टेंस है. जैसे अगर ये पॉइंट Q है तो Q से तुमने HP में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये पर्टिकुलर लेंथ जो है वो तुम्हारा ये रिप्रेजेंट करता है. हाँ या तो Q1 डैश से जो परपेंडिकुलर यहाँ पर तुमने ड्रॉ किया है तो ये लाइन इंडिकेट करेगा कि पॉइंट Q जो है वो HP से कितना डिस्टेंस है. सो दिस पर्टिकुलर लाइन इज इंडिकेटेड H of Q. After that, what you need to do, you have to draw a line which passes through Q1 dash and it parallel to XY line. So I take this particular XY line and I pass it through this particular Q1 dash. Now this particular line is parallel to our reference line XY. So in this particular line, our locus of Q dash particular line है जो कि Q1 dash से पास करेगा. तो इस लाइन पर तुम्हारा जो है वो Q dash लाई करेगा. ठीक है. Now what you need to do, you have to draw a perpendicular from R dash on this particular line. So what you need to do, you take this particular line which passes to R1 and it is perpendicular to this particular line. Now this particular distance, so this is this particular distance which I have highlighted this one. So this particular length it is called as it is a length. This is a length corresponding to R of Q. तो ये लेंथ जो है वो R और Q के बीच में है, डिफरेंस करता है. यानी कि R जो टॉप व्यू है वो ये पर्टिकुलर लेंथ जो है आवाज नहीं आ रहा है. दिस इज द टॉप व्यू लेंथ. अच्छा नहीं आ रहा, अब आ रहा है. ठीक है. अब तुम्हें करना क्या होगा, पॉइंट आर से your internet connection is unstable. हेलो सर प्रियांशु. एयरटेल है क्या आपका? हेलो
यस सर। नहीं नहीं, ये है तुम्हारा, क्या तो बोला सर जाता है, वाईफाई कनेक्शन है अब, सर सिस्टम आज का है। प्रॉब्लम हो रही है सर। कॉलेज में है क्या सर? जो कॉलेज प्रोवाइड कर रही है, आज थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है मुझे भी, बार बार जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम यहाँ भी है। अभी साफ आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर, अभी साफ है। एक बार सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा ठीक है। अरे ठीक है, अब बता देना, ठीक है। आवाज अगर नहीं आएगी, हम तो बोल रहे हैं, लेकिन आवाज अगर नहीं आएगी तो बता देना, ठीक है। हेलो सर। हेलो। आर से एक लाइन पास करेगा, इस लाइन का लेंथ कितना पास करना चाहिए, लाइन एक्स वाई से एंगल जो बनाएगा। हाँ प्रज्वल बताओ। हाँ हेलो। सर ये सर प्रॉब्लम सर इसमें सर भेज देंगे सर आप थोड़ा सर। वॉइस बहुत स्लो है सर, समझेंगे सर, नहीं आएगा तो ऑफलाइन में डिस्कस कर लेंगे। सर ये भेज दीजिए सर बाद में। वो तो है ऑप्शन। हाँ भेज देंगे, पीपीटी भी भेज देंगे, और ये पीपीटी भी सेंड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्मॉल आर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन का लेंथ कितना होना चाहिए, 75 mm। ठीक है, और ये लाइन आर से पास करेगा और एक्स वाई से कितना एंगल बनाएगा, वो तुम्हारा 45 डिग्री बनाएगा। तो इस लाइन को हम लोग को 45 डिग्री रोटेट करना है, इसे हम लोग 45 डिग्री रोटेट करते हैं। ये 45 लेंथ है, और इस लाइन का लेंथ कितना होना चाहिए, 75 mm। ये भी तुम्हारा एंगल कितना होना चाहिए, ये लेंथ कितना, आर डैश क्यू वन डैश कितना होना चाहिए, 75 mm। ये पर्टिकुलर एंगल कितना होना चाहिए, इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है 30 डिग्री। ये एंगल तुम्हारा कितना होना चाहिए, ये एंगल तुम्हें 45 डिग्री दिया हुआ। अब जो तुम्हें ये लास्ट पॉइंट बनता है, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे स्मॉल क्यूब। So this particular point is called as a small cube। अब इस क्यू से अगर हम लोग एक्स वाई पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये तुम्हारा क्यू है। इस क्यू पॉइंट से अगर तुम एक्स वाई पर परपेंडिकुलर तुम ड्रॉ करते हो, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है रिप्रेजेंट करता है डी ऑफ क्यू को। नाउ डी ऑफ क्यू को अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, तो डी ऑफ क्यू का अर्थ क्या है। जैसे ये तुम्हारा पॉइंट क्यू है, बी को हम लोग क्यू कहते हैं, तो क्यू से अगर वर्टिकल प्लेन में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हो, तो ये तुम्हारा बनेगा क्यू डैश। तो क्यू और क्यू डैश के बीच में जो डिस्टेंस है, ये पर्टिकुलर लाइन, तो ये डिस्टेंस बताता है पॉइंट क्यू जो है वर्टिकल प्लेन से कितने डिस्टेंस पर है। तो इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का क्या तरीका था, तुम्हें आर का टॉप व्यू पता है, इस टॉप व्यू से एक लाइन ड्रॉ कर लेना, जो कि आर क्यू लेंथ यानी 75 mm के बराबर होगा, और वो एक्स वाई से कितना एंगल बनाएगा, एंगल 5 बनाएगा। फिर ये पॉइंट तुम्हें क्यू मिलेगा, इससे अगर एक्स वाई को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो तुम्हारा पॉइंट क्यू वर्टिकल प्लेन से कितने डिस्टेंस पर है, ये कैलकुलेट हो जाता है। उसी के बाद अगर तुम आर से अगर इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो ये पर्टिकुलर लेंथ जो है तुम्हारा फ्रंट व्यू को रिप्रेजेंट करेगा, आर डैश
और क्यू डैश को रिप्रेजेंट करता है। अब तुम्हें क्या है, ये Q1 डैश से तुमने जो एक्स वाई के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, इसी लाइन पर तुम्हारा Q डैश लाई करेगा। अब तुम्हें R डैश Q डैश का लेंथ जो है इस पर्टिकुलर लेंथ के बराबर है। अब तुम्हें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस जो है फ्रंट व्यू लेंथ के बराबर होगा R डैश Q डैश के, और वो सर्कल का सेंटर जो है तुम लोग R डैश पर रख लो। तो वो सर्कल इस लाइन को जहां कट करेगा वो पॉइंट तुम्हारा Q बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्कल का रेडियस जो है तुम्हारा इस फ्रंट व्यू रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो इस फ्रंट व्यू का रेडियस है तुम्हारा 2.42 है, 4.84, 4.84 एंड 4.84। तो हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। ये सर्कल का रेडियस जो है वो तुम्हारा इस फ्रंट व्यू लेंथ के बराबर, ये फ्रंट व्यू लेंथ है, इस फ्रंट व्यू लेंथ के बराबर है। इसका ये तुम्हारा सेंटर है। देखो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस क्या है, फ्रंट व्यू रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, अब इस सर्कल को हमको क्या करना है, इस सर्कल के सेंटर को हमको आर डैश पर लोकेट करना है। और ये सर्कल को आर डैश, इसके सर्कल के ये तुम्हारा सेंटर है, इसके सेंटर को हमको आर डैश पर लोकेट करना है। तो इसको सेंटर को हम लोग सबसे पहले आर डैश पर लोकेट कर लेते हैं। अब ये सर्कल जो है, जो Q1 डैश से जो तुमने लाइन ड्रॉ किया, इसे दो जगह कट करा है। एक पॉइंट तुम्हारा ये पर्टिकुलर पॉइंट बनता है, दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो तुम्हारा यहाँ बनता है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये तुम्हारा बन जाएगा Q डैश। अब तुम्हें करना क्या है, इस Q डैश को इस R से जोड़ दो। तो तुम्हारा फ्रंट व्यू तुमने कैलकुलेट कर लिया। तो फ्रंट व्यू कैलकुलेट कर लिया, तो हम अभी इसे डिलीट कर देते हैं ताकि समझने में दिक्कत, नेक्स्ट स्टेप में दिक्कत नहीं। अब तुमने R डैश Q डैश तुमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब तुम्हें स्मॉल q फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल q फाइंड आउट करने का दो तीन तरीका है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, Q डैश से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये Q डैश से, इस Q डैश से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा। इस लाइन को तुम्हें एक्सटेंड कर देना है वर्टिकली डाउनवर्ड, और Q से एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि एक्स वाई के पैरेलल होगा। ये दोनों ही लाइन जहां कट करेगा वो पॉइंट तुम्हारा बन जाएगा स्मॉल q। तो ये पॉइंट तुम्हारा बन जाएगा स्मॉल q। उसके बाद तुम्हें करना क्या है, एक पॉइंट लो, इसे R से तुम कनेक्ट करो और दूसरे वाले पॉइंट को तुम Q से कनेक्ट करो। तो ये फाइनली जो है तुम्हारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इस प्रॉब्लम का 90% कंप्लीट हो चुका है, 10% रिमेनिंग। 10% तुम लोग सोचना क्या रिमेनिंग है।
ठीक है, तो 90% कंप्लीट है। तो तुमने फ्रंट व्यू आर डैश क्यू डैश फाइंड आउट कर लिया है, और उसी तरीके से टॉप व्यू तुमने आर क्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब तुम लोग को सोचना है कि पी डैश को तुम्हें कैलकुलेट करना है, पी डैश को, और उसी तरीके से तुम्हें स्मॉल पी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये रिमेनिंग पोर्शन जो है वो तुम लोग कंप्लीट करना। ठीक है, और फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना कैसे हम लोग पी डैश और क्यू डैश को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का कंप्लीट हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। किसी को इसमें स्टेप में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल गो नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। सर सेम यही प्रॉब्लम एक बार और बता दीजिएगा। हाँ हाँ, बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत सेम इसमें। क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन अलग कर दीजिएगा, प्रॉब्लम यही करेक्ट करेक्ट रहेगी। करेक्ट, ठीक है ठीक। तो उसको अभी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, दूसरा देखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताएंगे, नेक्स्ट सेम प्रॉब्लम को मॉडिफाई करके नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इसे नोट कर लो। क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस हर एक स्टेप तुम्हें अगर गौर से देखोगे तो हर एक स्टेप तुम्हें कॉमन लगेगा। अगर तुम हर एक मेरे लेक्चर को अगर गौर से देख रहे होगे तो सारे स्टेप जो है कॉमन है। ठीक है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड 80 मिलीमीटर लॉन्ग एक लाइन है पी क्यू है जिसका लेंथ तुम्हें 80 मिलीमीटर दिया, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का अर्थ क्या है? हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट का अर्थ है जैसे ये पॉइंट तुम्हारा पी है, ये पॉइंट तुम्हारा क्यू है, तो पॉइंट पी जो है वो एच पी से एबव द एच पी है, और पॉइंट पी जो है वीपी से इन फ्रंट ऑफ वीपी है। उसी तरीके से पॉइंट पी जो है एबव द एच पी है, और पॉइंट क्यू जो है वो इन फ्रंट ऑफ वीपी है। तो अगर कोई लाइन तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका अर्थ है दोनों ही इन पॉइंट एच पी के एबव है और वीपी से इन फ्रंट है, इस स्टेटमेंट का अर्थ है। ठीक है, और इसमें तुम्हें दिया है पॉइंट पी जो है वो एच पी पर लाई करता है, पॉइंट पी इज ऑन द एच पी, इसका अर्थ है एच ऑफ पी जो है वो 0 है। तो अगर कोई पॉइंट अगर एच पी पर लाई करेगा, जैसे अगर हम लोग ये पॉइंट तुम्हारा देख लो, जैसे अगर ये पॉइंट पी है, अगर ये पॉइंट पी जो है अगर एच पी पर लाई करेगा, तो इस पॉइंट का अगर तुम फ्रंट व्यू लोगे तो वो तुम्हारा रेफरेंस लाइन पर लाई करेगा, और टॉप व्यू जो लोगे तो वो वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस दिया होगा, तो एक्स वाई के बिलो एक्स वाई लाइन जो डिस्टेंस दिया होगा। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ है अगर पॉइंट P जो है एच पी पर है तो इसका अर्थ है P डैश जो होगा वो एक्स वाई लाइन पर लाई करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट Q जो है वर्टिकल प्लेन में है, तो इसको हम लोग फिगर से देखते हैं। अगर ये पॉइंट तुम्हारा Q है, अगर ये पॉइंट Q जो है अगर तुम्हारा VP पर लाई करेगा यानी इस प्लेन पर लाई करेगा, तो इस Q का जो टॉप व्यू जो होगा वो तुम्हारा एक्स वाई लाइन
XY पर लाई करेगा। तो इससे तुम्हारा P डैश जो होगा वो तुम्हारा XY पर लाई करेगा, और Q जो होगा, स्मॉल q जो होगा वो तुम्हारा XY पर लाई करेगा। इससे ये पता लगता है। अब लाइन का इंक्लिनेशन दिया हुआ है, HP से 45 डिग्री बनाता है और BP से 30 डिग्री बनाता है। देख लो डाटा तुम्हारे पास अगेन 5 है, 1 2 3, P का लोकेशन, Q का लोकेशन, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है 5 दिया। तो लाइन के प्रॉब्लम में तुम्हें 5 क्वांटिटी दिए रहेंगे। अब तुम्हारा सिंपल है, XY लाइन ड्रॉ कर लो। अब तुम्हें पॉइंट P के बारे में दिया हुआ, पॉइंट P जो है HP पर है। तो पॉइंट अगर P तुम्हारा अगर HP पर होगा, अगर ये P पॉइंट तुम्हारा HP पर होगा, तो इसका फ्रंट व्यू जो होगा वो XY पर लाई करेगा। तो तुम लोग इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट चूज कर लेते हो, तो वो पॉइंट तुम्हारा बन जाएगा P ऑफ डैश। तो इस लाइन पर हम लोग कोई भी एक पॉइंट चूज कर लेते हैं, तो ये पॉइंट तुम्हारा बन जाएगा P ऑफ डैश। इस पॉइंट को हम लोग P ऑफ डैश कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पास P डैश पता है, ठीक है। तो पॉइंट P वर्टिकल प्लेन से कितने डिस्टेंस पर है, पॉइंट P वर्टिकल प्लेन से कितने डिस्टेंस पर, पॉइंट अगर ये पॉइंट P है तो वर्टिकल प्लेन के कितने डिस्टेंस पर, ये तुम्हें कैलकुलेट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस P डैश से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि XY के परपेंडिकुलर होगा। तो P डैश से एक लाइन ड्रॉ कर ली है जो कि XY पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसी लाइन पर तुम्हारा स्मॉल p लाई करेगा, लेकिन कितने डिस्टेंस पर लाई करेगा वो क्वांटिटी मुझे नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब मेरे पास दिया हुआ है पॉइंट Q जो है वो तुम्हारा वर्टिकल। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो HP से एंगल तुम्हें कितना दिया हुआ है, HP से तुम्हें दिया हुआ है, हाँ, HP से 45 डिग्री दिया हुआ, HP से 45 डिग्री। ठीक है, तो ये पॉइंट Q HP से कितना डिस्टेंस है, यानी H ऑफ Q फाइंड आउट करने का क्या टेक्निक है। H ऑफ Q फाइंड आउट करने का टेक्निक तुम्हारा क्या होता है कि P डैश से एक लाइन ड्रॉ करोगे, इस लाइन का लेंथ कितना होगा 82 लेंथ 80 mm के बराबर, और ये लाइन जो है वो XY से कितना एंगल बनाएगा, थीटा डिग्री, थीटा 45 डिग्री की है। तो हम लोग एक लाइन लिए, इस लाइन का लेंथ हम लोग 80 मिलीमीटर के बराबर करेंगे, और ये लाइन जो है XY से 45 डिग्री बनाएगा। तो इसको हमको 45 डिग्री हमको रोटेट करना होगा। तो इस लाइन को हम लोग -45 डिग्री हम लोग रोटेट कर दें। इस लाइन का लेंथ थोड़ा सा छोटा कर दे, ये लेंथ जो है वो तुम्हारे 80 mm के बराबर होगा। ठीक है, अब इस लाइन का एक एंड हम लोग P डैश पर रखेंगे, और दूसरा एंड जो होगा वो तुम्हारा होगा, उसको हम लोग Q1 डैश कहेंगे। Q डैश, ठीक, Q1 डैश। अब इसे Q1 डैश कर लेना। ठीक है, अब इस Q1 डैश से XY पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इस पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इसी पॉइंट पर तुम्हारा क्या होगा, इसी ये डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा DH ऑफ Q को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये डिस्टेंस H ऑफ Q कहेंगे, पॉइंट Q HP से कितना डिस्टेंस है, और Q1 डैश से जो पहला लाइन ड्रॉ करोगे, तो इस लाइन पर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा फ्रंट व्यू यानी Q डैश लाई करेगा। ये कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब इस P डैश से अगर तुम इस लाइन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो ये डिस्टेंस तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा टॉप व्यू को।
स्पेशली ये डिस्टेंस तुम्हें टॉप व्यू का है तो स्मॉल पी क्यू लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, पी क्यू लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो तुम्हें पी क्यू लेंथ तुम्हें पता हो गया। अब उसी तरीके से हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में मुझे इसी तरीके से करके फ्रंट व्यू यानी कि पी डैश और क्यू डैश फाइंड आउट करना। ये लेंथ हमको फ्रंट व्यू लेंथ फाइंड आउट करना है। देखो फ्रंट व्यू लेंथ फाइंड आउट करने का क्या टेक्निक होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर तुम्हें बस लेंथ कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एक्स वाई लाइन पर कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो और इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लो। जिस एक्स वाई पर कोई भी एक लाइन, मुझे पी डैश और क्यू डैश का लेंथ चाहिए, तो इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो। इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करो जिसका लेंथ कितना होना चाहिए, टॉप टू लेंथ 80 mm के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और इस लाइन से कितना एंगल बनाएगा, तुम्हारा इस लाइन से एंगल बनाएगा फाई एंगल बनाएगा। और फाई इस केस में तुम्हें 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर कोई भी एक पॉइंट चूज कर लेते हैं। ये कोई हम लोग यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट चूज कर लेते हैं, ये पॉइंट हम लोग यहाँ पर चूज कर लेते हैं एक्स वाई पर, और इस पॉइंट से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका लेंथ कितना होना चाहिए, 80 mm, और वो एक्स वाई से कितना एंगल बनाएगा, तुम्हारा फाइव बनेगा। और ये फाइव तुम्हें 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग 30 डिग्री रोटेट करते हैं। अब तुम्हें करना क्या है, इस पॉइंट से तुम्हें इस पर परपेंडिकुलर तुम्हें ड्रॉ करना है। तो जब तुमने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है तो स्पेशली ये बेस, इस ट्राइंगल का जो बेस है, ये पर्टिकुलर बेस जो है वो रिप्रेजेंट करेगा फ्रंट व्यू लेंथ को। फ्रंट व्यू लेंथ मैंने क्या बताया था, फ्रंट व्यू लेंथ मैंने बताया था ए बी कॉस ऑफ फाइव। अगर ये तुम्हारा ए बी है और ये एंगल फाइव है तो ये कितना होगा, ए बी कॉस फाइव। अगर ये तुम्हारा पी क्यू लेंथ है, अगर ये एंगल फाइव है तो ये लेंथ कितना होगा, पी क्यू कॉस ऑफ फाइव। तो ये लेंथ किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा, तुम्हारा पी डैश क्यू डैश को रिप्रेजेंट करेगा। अब तुम्हें फ्रंट व्यू लेंथ पता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस जो है पी डैश क्यू डैश के बराबर होगा। तो हम लोग सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका रेडियस जो है वो फ्रंट व्यू रेडियस के बराबर होगा। तो इसका लेंथ हम लोग मेजर कर लेते हैं। लेंथ है तुम्हारा 3.12 6.24 ठीक है। ये सर्कल है जिसका रेडियस जो है फ्रंट व्यू के बराबर है। इससे थोड़ा सा यहाँ सर्च कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल का जो सेंटर है, इसका सेंटर जो हम लोग पी डैश पर लोकेट करेंगे। अब ये सर्कल जो है Q1 डैश से जो तुमने ड्रॉ किया, इसे दो जगह कट करे, एक ये पॉइंट कट कर रहा है, एक तुम्हारा ये पॉइंट कर रहा है। इसे दो जगह कट कर, एक ये पॉइंट है तुम्हारा कट कर रहा है, दूसरा पॉइंट जो है ये तुम्हारा कट कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो तुम्हारा Q डैश बन जाएगा। और P डैश और Q डैश अगर तुम लोग इसे बना लेते हो, P डैश Q डैश को बना लेते हो, तो ये तुम्हारा फ्रंट व्यू बन गया। तो इस लाइन का तुमने फ्रंट व्यू तुमने ड्रॉ कर लिया कंप्लीट तुम्हारा। तो ये फ्रंट व्यू बनाने का तरीका। अब मुझे पता है Q तुम्हारा Q, अगर क्योंकि Q तुम्हें दिया हुआ है, Q जो है VP पर है, तो इस पॉइंट का टॉप व्यू जो हुआ XY लाइन पर लाई करेगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, Q डैश से तुम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लो जो कि इस पॉइंट को कट करेगा यहाँ पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो ये पॉइंट तुम्हारा बन जाएगा Q, क्योंकि मुझे पता है कि Q जो वर्टिकल प्लेन पर है तो स्मॉल q, इसका टॉप व्यू जो है वो XY लाइन पर लाई करेगा। तो इस तरीके से तुमने स्मॉल q को तुमने लोकेट कर लिया। अब तुम्हें टॉप व्यू लेंथ पता है, टॉप व्यू लेंथ क्या है, ये तुम्हारा स्पेशली ये पर्टिकुलर लेंथ जो है P डैश,
इस ट्रायंगल पी डैश क्यू डैश और ये परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा टॉप व्यू लाइन है। इस लाइन को तुम लोग चूज करो, इसके एक इन पॉइंट को इस पर रखो। ये लाइन है तुम्हारा, इस लेंथ को हम लोग कहते हैं टॉप व्यू। ये तुम्हारा पी डैश से जो तुमने पढ़ा ये टॉप व्यू है। तो इस लेंथ को मेजर करो और इसका एक पॉइंट जो है Q1 पर रखो और इसके सेंटर से इस लाइन P1 डैश से जो वर्टिकल लाइन ड्रॉप किया इस पर कट करो। तो जहां कट करोगे वो पॉइंट तुम्हारा बन जाएगा स्मॉल p। ये पॉइंट तुम्हारा बन जाएगा स्मॉल p। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम का तुम्हारा ये सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? ठीक है, तो जब तक खुद से अगर बनाओगे नहीं तब तक थोड़ा सा डिफिकल्टीज रहेगा। तो ये लास्ट प्रॉब्लम था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। तो अपने नोटबुक में सभी प्रॉब्लम बनाओ, जितने क्लास में अगर बताते हैं उससे बनाओ। डिफिकल्टीज होता है तो मैसेज करना, उसे हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे। हेलो सर। हाँ प्रज्वल बताओ। सर इसमें सर जैसे कुछ भी जैसे ना मतलब समझ में नहीं आ रहा सर, ये वॉइस के चक्कर में। तो सर हाँ तो पूछ सकते हो, क्लास में पूछ सकते हो। ऑफलाइन में सर क्लियर कर लें ऑफलाइन में। ऑफलाइन में देखो हम अवेलेबल जो है ज़्यादा अभी है नहीं, हम वो समय तुमको दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए पर्सनली इसलिए हम नहीं करना चाह रहे। अगर क्लासेस चलती तो ठीक है, तो जो क्लासेस मेल के थ्रू कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो, चाहे क्लास में अगर पूछ सकते हो। क्लास ओवर है, जिसको लीव करना है लीव कर सकता है, तो वो काम कर सकते हैं। पर्सनली में थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि कुछ पर्सनल यानी पर्सनल ही काम ही है। तो इसमें क्लास के दौरान में अगर पूछो तो कुछ क्लासेस इसका करवा सकते हैं। सर इसमें सर एक तो सर बहुत कम मतलब वॉइस बहुत कम आ रही सर, एक इसमें फोन में बहुत दिक्कत है। तो वो तो हाँ, वो तो दिक्कत हम समझ पा रहे हैं, लेकिन क्लासेस अगर प्रॉपरली अगर चलती तो ठीक रहता। अभी तुम्हारी आवाज़ तो सर सही। अभी पीछे का सर वो अभी थोड़ा बहुत सर क्लियर नहीं, मतलब छूटा हुआ है इस वॉइस के चक्कर में सर। हाँ, तो उसमें तो अब क्लासेस अगर इंग्लिश होगी तो उसमें मदद कर सकते हैं। सर कौन सी क्लास? यानी कि ऑफलाइन क्लासेस अगर होती है, लैब होगी तो उस समय मदद कर सकते हैं। ओके सर। उस समय मदद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होगी क्लास लैब तो सर होगी। अभी नोटबुक भी बनानी सर, नोटबुक। अभी तो जो क्लासेस में न्यूमेरिकल बना रहे हैं वो न्यूमेरिकल पर काम करो, और डिफिकल्टी आता है तो मेल के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू क्लास के दौरान अगर पूछ सकते हो क्या नहीं समझ में आता है, वो ज़्यादा नहीं सही था। तो सर एक इसमें सर वॉइस बहुत बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही। हाँ नहीं तब तो दिक्कत है। सर हाँ हेलो। हाँ सर वो हमने एक क्वेश्चन भेजा था आपके पास, ठीक है, सर तो हम सॉल्व्ड। ठीक है व्हाट्सएप पर भेजा था कि मेल पर भेजा था? देखो सर एक बात, व्हाट्सएप पे। ठीक है हम दो चीज़ बता देते हैं। अगर 10 से 5 के बीच में अगर व्हाट्सएप के में भेजोगे तो वो हम व्हाट्सएप नंबर मेरे पास नहीं रहता, तो 10 से 5 में हम नहीं देखें। 5 बजे के बाद जाएंगे तो उसका रिप्लाई जो होता है तुम्हें 5 बजे के बाद मिलेगा। और मेल के थ्रू अगर भेजोगे तो मेल जो है यहाँ पर कनेक्ट रहता है, तो मेल के थ्रू भेजोगे तो हम रिप्लाई करेंगे। व्हाट्सएप के तुमने भेजा है तो 5 बजे के बाद जो है उसका सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम था हेलो, ओके सर। ठीक है वो व्हाट्सअप पढ़ लेंगे तो उसका रिप्लाई हम 5 बजे के बाद कर देंगे। वो 10 से 5 के ओके बीच में व्हाट्सअप जो होता है भेजोगे, लेकिन वो 5 बजे के बाद ही रिप्लाई देगा। ओके हेलो सर। हेलो। हाँ ठीक है, हाँ प्रज्वल बताओ। हाँ सर। हेलो। हाँ 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 प्रज्वल। सर ये कह रहे हैं सर, जो जैसे ऑफलाइन जैसे अगले महीने होती है तो उसमें सर क्लियर कर ले नहीं पीछे का जित। उसमें नहीं, ऑफलाइन होती है तो उसमें कोई दिक्कत अगर हो, अगर इन केस अगर होती है तो उसमें पूछना, कोई दिक्कत नहीं उसमें क्या दिक्कत। नहीं वो प्रियांशु बोल रहे थे, कह रहे थे मतलब वो उससे पूछा तो वो सीआर का मतलब बोल रहा था